Okay, now we should start with our topic straight away, I think, because it's a very complicated topic and I don't want to waste any time. So, are you understanding what I am telling you about the molecular hallmarks of neoplasia? I need your feedback first today. Okay, that's good if you are understanding everything. So far, what we have covered, we are going through the molecular hallmarks of neoplasia, and we have discussed two major hallmarks. First one was the um, about the oncogenes, where the tumors can divide without any external stimulus, and the second one is about the tumor suppressor genes, which are mutated, leading to the loss of function of these tumor suppressor genes, so that the tumor cells can replicate in a limitless fashion. Okay. So about tumor suppressor genes, someone asked me to discuss the mechanism of action of RB gene in detail. So I thought that I should go through this first, and then I will continue with my today's topic. Okay. So this RB gene, it was the first tumor suppressor gene that was discovered. सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में यही है कि ये दिस वाज द फर्स्ट जीन दैट वाज डिस्कवर्ड, द फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन दैट वाज डिस्कवर्ड. it was it is present in all of us. And what is the function of this gene normally? It applies brake to the process of cell division where it is required. For example, process of cell division is a normal process. सेल डिवीजन ऑब्वियसली हमारी स्किन में हर वक्त होनी है, हमारे जो भी टिश्यूज जिनमें सेल डिवीजन की जरूरत है वहाँ होनी है सेल डिवीजन. लेकिन कौन सी कंडीशंस ऐसी होंगी जिनमें हमें इस सेल डिवीजन की नहीं जरूरत? Obviously, if there is any DNA damage or defect, then we don't need such type of damaged cells in our body. So in that case, these tumor suppressor genes, they come into action and they apply brake to the process of cell division. As a result, the cell division stops for a while and gives the cell the required time to repair itself. Okay, so this was the normal pathway of action of RB gene. So what happens? Where is the RB gene involved in the cell cycle? It is involved at the G1S checkpoint. G1S checkpoint makes sure that all the DNA that has been duplicated in the G1 phase is normal and it does not have any abnormality or any mutation or any defect. Okay, so G1S checkpoint is there to check the integrity of the DNA that has been divided in the G1 phase. Okay, so when the cell keeps on dividing, when we want that the cell divides, what happens in that scenario? The growth factors are acting, growth factors which are also the proto-oncogenes, EGF, PDGF, they activate cyclins D and cyclin E. They activate these complexes, cyclin D, ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये तीन कॉम्प्लेक्सेस को ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं दे एक्टिवेट. जब ये वाले कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं? बिकॉज CDK is attached in this complex. CDK, cyclin dependent kinase. Kinase means that it has to phosphorylate protein. तो ये जो काइनेजेस हैं ये किसको फॉस्फोराइलेट करेंगे? ये इस RB प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेंगे. एज अ रिजल्ट देयर विल बी hyperphosphorylated RB. It means ये जो RB है, ये वाला जो एंकर की शेप में ये बनाया हुआ है इन्होंने, this is RB. RB is phosphorylated in this case. जब ये phosphorylate होती है तो ये क्या होता है कि
E2F is an elongation factor which is required to continue the process of transcription. तो ये E2F को it releases E2F when it is phosphorylated. इसके सारे जो आप ये समझ लें कि इसके जितने हाथ हैं उनके अंदर सारा फॉस्फोरस आ गया है, तो अब इसके हाथ है ही नहीं कोई फ्री जो कि E2F को पकड़े. ठीक है, it is itself hyperphosphorylated, so it releases E2F to perform its normal function. As a result, the transcription takes place. Transcription के होने का मतलब यही है कि transcription जब होगी, translation होगी, there will be more protein and the cell cycle will progress. Okay, what is the other case? When the growth inhibitors become activated. Growth inhibitors क्यों activate होते हैं? जब DNA के अंदर कोई defect आ गया, कोई उसके अंदर problem है, तो now growth inhibitors will become activated. और ये क्या करेंगे? ये स्टिमुलेट करेंगे CD के इनहिबिटर्स को. CD के इनहिबिटर्स कौन से हैं? ये ऊपर वाले जो कि इन सारों को इनहिबिट कर रहे हैं, इस वाले कॉम्प्लेक्सेस को हर जगह पे CD काइनेज इनहिबिटर्स जो हैं दे आर इनहिबिटेड. जब ये इनहिबिटर्स इन कॉम्प्लेक्सेस को इनएक्टिवेट कर देंगे तो क्या होगा? आप काइनेजेस जो हैं दे आर इनएक्टिवेटेड, तो ये RB जो है इट विल बिकम हाइपोफॉस्फोराइलेटेड, यानी कि अब इसके पास कोई फॉस्फोरस नहीं होगा, इसके हैंड्स फ्री होंगे, तो इट विल sneeze, it will catch the E2F transcription factor. जब वो उसको पकड़ लेगा E2F transcription factor को, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये सारा स्टॉप हो जाएगा, process of transcription. It will be stopped. So this is the whole process. It is very easy. आप लोग इसको ध्यान से सिर्फ एक दफ़ा खुली आंखों से पढ़ें और खुले दिमाग के साथ, तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. ठीक है जी. अच्छा जी, अब हम अपनी स्टार्ट करेंगे आज की जो प्रेजेंटेशन है. आप लोगों को ये आई होप अब समझ आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी. तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है थर्ड हॉलमार्क ऑफ नियोप्लेजिया. फर्स्ट 2 हॉलमार्क्स हमने पढ़ लिए हैं, अब हम थर्ड हॉलमार्क पढ़ रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अबाउट द ग्रोथ प्रोमोटिंग मेटाबॉलिक ऑल्टरेशंस इन नियोप्लेजियाज. सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? हाउ कैंसर सेल्स आर एबल टू इवेड प्रोग्राम सेल डेथ. बस ये फर्स्ट हुई हम पढ़ेंगे, थर्ड वाले का टाइम नहीं होगा. मैंने अपनी प्रेजेंटेशन शॉर्ट कर दी है क्योंकि वो एक ही लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है उसको करना फॉर स्टूडेंट्स. एंड अच्छा जी, हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं? हमने ये पढ़ लिया सस्टेनिंग प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग. ये फर्स्ट वाला हमारा था जिसमें मेन रोल कौन प्ले कर रहा था? ऑन्कोजीन्स. ठीक है. सेकेंड वाला क्या था हमारा जो हमने पढ़ा है? वो है इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर्स. ग्रोथ सप्रेसर्स और ट्यूमर सप्रेसर्स आर दी सेम थिंग. ये वाले हमने 2 पढ़ लिए हैं. अब हम पढ़ने लगे हैं डीरेगुलेटिंग सेलुलर एनर्जेटिक्स. सारा का सारा जो न्यूप्लास्टिक सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं दे आर ऑल ऑल्टर्ड. क्यों ऑल्टर उन्हें करने की ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज ऑब्वियसली द ट्यूमर और the malignant neoplasia they multiply, the cells in the malignant tumors they multiply at an exponential rate. वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती उनकी, इसलिए जो नॉर्मल मेटाबॉलिक हमारे पाथवेज हैं दे कैन नॉट प्रोवाइड विद द सफिशिएंट रॉ मटेरियल्स एंड सफिशिएंट एनर्जी टू replicate. So cancer cells have a more energy efficient metabolic system. It is called Warburg effect. अभी तक आप लोगों ने कौन से मेटाबॉलिक सिस्टम्स पढ़े हैं? आप लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल पढ़ा है, आप लोगों ने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा है, फिर आपने एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ा है. और ये किन कंडीशंस में होते हैं ये आप लोगों को याद होगा. आई होप आप लोगों को याद हो. So what is Warburg effect? This distinctive metabolic system is characterized by high levels of glucose uptake and increased conversion of glucose to lactose fermentation via the glycolytic pathway even in the presence of ample oxygen. And it is also called aerobic
ग्लाइकोलिसिस। अच्छा जी, अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं, दे हैव एम्पल ऑक्सीजन विद देम। उनको ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती। उनके पास ब्लड सप्लाई जो है वो जो उनका अपना साइज बढ़ता है, देयर इज अ सिस्टम दैट देयर ब्लड सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस विद देम। जहाँ जहाँ ट्यूमर सेल्स ग्रो होते जाते हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी नई बनना शुरू हो जाती हैं उनके पास, एंजियोजेनेसिस भी हो रही होती है वहाँ पे। इसलिए दे आर नॉट दे आर नॉट डेफिशिएंट इन ब्लड सप्लाई। मगर हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दे आर डेफिशिएंट इन ब्लड सप्लाई एंड ओनली द मिडिल पार्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्यूमर, जो आप लोगों ने सेंट्रल नेक्रोसिस में पढ़ा था कि इन सम ऑफ द ट्यूमर्स they grow so rapidly that the central part of those tumors, they are unable to get the nutrients, the blood, the oxygen from the bloodstream, so they become necrotic and they die. तो वहाँ पे वो necrosis हो जाता है central part। otherwise जो जो ट्यूमर स्प्रेड करता है उसके साथ उसकी ब्लड वेसल्स भी, उसकी ब्लड सप्लाई भी जो है वो स्प्रेड करती है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक ऑल्ट्रेशन इसमें क्या है कि दे हैव एम्पल ऑक्सीजन विद देम, but even then they take up the pathway of aerobic glycolysis। अगर आप लोगों को याद होगा, ये हमारी नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन थी। देयर आर टू कंडीशंस। ये अभी सिर्फ नॉर्मल की बात हो रही है, अभी हम नियोप्लास्टिक के ऊपर नहीं आए, ठीक है। दिस वन इज द एरोबिक and the other scenario is about anaerobic conditions. When oxygen is present in ample amounts in normal cells, they go through the process of glycolysis, और फिर जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं दे गो थ्रू द क्रेब्स साइकिल व्हिच हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड देन the products go into electron transport chain with supply of oxygen in the mitochondria again, and the net yield is 34, 35, 36, 37, 38 ATP molecules along with CO2 and water। ये इसका प्रोडक्ट होता है नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसके 3-4 पार्ट्स होते हैं। ग्लाइकोलिसिस होता है पहले, फिर क्रेब साइकिल होती है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा एटीपी मिल जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एटीपी है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज deficiency of oxygen, what happens? There is anaerobic glycolysis in that case, which yields lactic acid and alcohol। इसमें कोई एटीपी की कोई yield नहीं होती, सिर्फ ऊपर ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ही 2 ATPs मिलते हैं along with oxygen। Okay. So this is what happens in normal respiration, but what happens in Warburg effect? Warburg effect में mostly जो उसकी metabolic requirement है that is met through this anaerobic glycolysis। मतलब एनारोबिक नहीं होता, इसको हम एनारोबिक नहीं कहते क्योंकि देयर इज एम्पल ऑक्सीजन प्रेजेंट, सो इट इज कॉल्ड एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, हो ये वाला रहा होता है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पल ऑक्सीजन। सो it is characterized by high levels of glucose uptake and increased conversion of glucose to lactose via the glycolytic pathway even in the presence of ample oxygen. Thus it's also called aerobic glycolysis. It was discovered first by Otto Warburg in 1931 और ये जर्मन साइंटिस्ट था। मतलब ये 1931 मैंने इसलिए बताया आपको कि इतने सालों पहले ये चीज़ डिस्कवर हो चुकी हुई थी, इसलिए आप लोगों को इसको सिर्फ समझने में और याद करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लोगों ने इसको डिस्कवर भी किया है, आप लोगों को बना बनाया मिल गया तो इसको याद कर लें। और द फोर्थ पॉइंट इज दैट वॉरबर्ग मेटाबॉलिज्म इज नॉट कैंसर स्पेसिफिक। ये नॉर्मली भी हो रही होती है जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो हाईली प्रोलिफरेटिव इन नेचर। सिमिलरली हमारे अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज हैं विच आर हाईली प्रोलिफरेटिव, वहाँ पर भी वॉरबर्ग मेटाबॉलिज्म ही हो रही होती है, so it is not cancer specific। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई, क्यों ये कैंसर जो है ये अपना मेटाबॉलिक सिस्टम जो है इसको क्यों ऑल्टर कर लेता है? व्हाई इज इट एडवांटेजियस फॉर ए कैंसर सेल टू रिलाई ऑन सीमिंगली इनएफिशिएंट ग्लाइकोलिसिस? जब उसको इतनी ऑक्सीजन भी है और इतने ज्यादा एटीपी मिल रहे हैं तो क्यों वो इतने कम एटीपी ले रही है और
even oxygen की presence में. Instead of oxidative phosphorylation, which generates up to 36 molecules of ATP per molecule of glucose. This is the question which should have been arised in your minds. इसका आंसर ये है. Aerobic glycolysis provides rapidly dividing tumor cells with metabolic intermediates that are needed for the synthesis of cellular components, whereas mitochondrial oxidative phosphorylation does not. Simple. क्योंकि वो इतनी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, उनको डिवाइड करने के लिए दे नीड मोर प्रोटीन्स. उनको सेल मेम्ब्रेन उन्होंने अपनी सिंथेसाइज करनी है. दे नीड लिपिड्स फॉर अगेन सेल मेम्ब्रेन, एंड दे नीड all the other metabolic intermediates so that they can synthesize their organelles. Mitochondria has to be synthesized, mitochondria, because it has to divide. तो उसमें जो इतने रैपिडली डिवाइडिंग ट्यूमर सेल्स हैं, उनको अपनी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू एटीपी. क्योंकि एटीएम के क्या फंक्शंस हैं? एक नॉर्मल सेल के अंदर एटीपी क्या करता है? एक तो वो डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, उसके लिए चाहिए होता है. या फिर ये चाहिए होता है अगर डिफरेंट स्केलेटल मसल्स हैं तो उनके अंदर अगर उन्होंने कोई अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, उसके लिए एटीपी चाहिए होता है. तो कैंसर सेल्स के अंदर इन वाले फंक्शंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती. दैट्स व्हाई दे डोंट नीड दैट मच ऑफ एटीपी, बट दे डू नीड हाई सप्लाई ऑफ metabolic intermediates so that they can divide rapidly. The reason growing cells rely on aerobic glycolysis becomes readily apparent when one considers that a growing cell has a strict biosynthetic requirement. It must duplicate all of its cellular components, DNA, RNA, proteins, lipids, organelles, before it can divide and produce two daughter cells. So how it happens? कैसे हो जाता है ये सारा? In tumor or proliferating tissues, mitochondrial function is still normal. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है क्या मेटाबॉलिज्म में? कि वो पूरी क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइल, वो जो है एंड वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. इन प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम साइटोक्रोम सी. आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम सी कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है. बट लिटिल माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कंटिन्यूज इन ट्यूमर सेल्स. ठीक है, होती है ये उसमें भी, ट्यूमर सेल्स में भी. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बट उसकी परसेंटेज कम हो जाती है. In order to satisfy the metabolic requirements of both energy and materials for rapidly proliferating cells, approximately 85% of glucose is processed to lactate via glycolytic pyruvate, even in the presence of oxygen. ये वो है जो इसको हम एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कह रहे हैं. ठीक है, लैक्टेट और वो वाला जो पाथवे है, 85% ग्लूकोज जो है वो इस पाथवे में लग जाती है. ठीक है, उसके बाद approximately 5% of the glucose is metabolized by oxidative phosphorylation. In addition, 10% of the glucose is diverted into the upstream of pyruvate production for biosynthesis. For example, pentose phosphate pathway. Pentose phosphate pathway क्या है? जो कि RNA और DNA के लिए की सिंथेसिस के अंदर ये वाला पाथवे होता है, ये रिक्वायर्ड होता है. तो उसके लिए पायरोवेट चाहिए होती है हमें. तो वो 10% ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट की सिंथेसिस के अंदर लग जाती है. ठीक है, सो दिस इज द ब्रेकअप. या आप लोग अगर इस स्लाइड को कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो आप ले लें, क्योंकि ये इस तरह से रॉबिन्स में नहीं लिखा हुआ. इट्स वेरी वेल एक्सप्लेनेटरी, लेकिन रॉबिन्स के अंदर थोड़े कंफ्यूजन है इसको समझने में. तो आई गिव यू 1 minute टू कॉपी दिस स्लाइड. ओके,
So this diagram is very is explaining all the phenomena in a very easy way. You can see in normal differentiated tissues what's happening. Glucose gets transported through glucose transporters. ये आप लोगों को याद होगा glucose transporter 1, 2, 3, 4 होते थे depending upon कि किस organ में है वो, ठीक है. Glucose transporters के through glucose अंदर transfer हो गई, goes into glycolysis. In the presence of oxygen, all of the glucose goes into the glycolytic pathway, the Krebs cycle, the electron transport chain, and it yields 30 to 32 ATP molecules along with carbon dioxide, which is respirated out of the cell, and water. Okay. And in the absence of oxygen, all of the glucose gets shunted into the lactate anaerobic glycolysis जिसको कहते हैं, और इसकी yield क्या होती है? Only 2 ATP molecules. So what happens in tumor tissues and proliferating tissues? The glucose transporters are actually upregulated due to certain gene mutations, और वो कौन सी gene mutations है वो हम पढ़ेंगे. So as a result, more glucose starts to gain entry into the cell. So what happens then? 5% of the glucose is only shunted into the mitochondria for Krebs cycle and oxidative phosphorylation, and it yields 4 ATP molecules as compared to the 2 ATP molecules which we were getting through anaerobic glycolysis. ये क्योंकि aerobic glycolysis है तो इसमें net yield जो है it is 4 ATP molecules. ठीक है. 85% जो है ये पायरोवेट और लैक्टेट वाले उसमें चली जाती है पाथवे में, और 10% जो है it is involved in the biosynthesis of pyruvate. Okay. So this is the metabolic alteration basically that takes place in the tumor tissues and the proliferating tissues. ये वाली हम डायग्राम बाद में करेंगे अगर जरूरत. How is this profound programming of metabolism, the Warburg effect, triggered in growing normal and malignant cells? ठीक है, अब इसके पीछे क्या केमिस्ट्री क्या है, कैसे हो जाता है? Metabolic reprogramming is produced by signaling cascades downstream of growth factor receptors, the very same pathways that are deregulated by mutations in oncogenes and tumor suppressor genes in cancers. जिस तरह आप लोगों ने स्टार्ट वाले 2 हॉलमार्क्स में पढ़ा है कि सारी चीजें म्यूटेशंस की वजह से हो रही थी, तो इसमें भी it also takes place due to mutations. ये सारा जो वॉरबर्ग इफेक्ट है ये क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ सर्टेन म्यूटेशन. और रैपिडली ग्रोइंग सेल्स में क्या होता है? उनमें कोई म्यूटेशन नहीं होती. उनमें क्या होता है कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस ceases when the tissue is no longer growing. In cancer cells, this reprogramming persists due to the action of oncogenes and the loss of tumor suppressor gene function. ठीक है. जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं उनमें क्या होगा कि जैसे ही टिश्यू की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस विल सीज, बट इन कैंसर सेल्स इट विल नॉट सीज. It will keep on in the same. It will keep on running in the same fashion. Okay. ये रॉबिन्स के अंदर पिक्चर दी हुई है. In quiescent cell, what happens? Glucose is transported into the cell and it goes into mitochondria for Krebs cycle and oxidative phosphorylation. Net yield is ATP and CO2. In cases where nutrients are deficient, for example in protein energy malnutrition and such kind of conditions, autophagy starts in the cell, and during autophagy what happens? Cell starts to eat some of its own parts to gain energy. Okay, and in some cases cell eats all of its own organelles and it gets damaged. It goes into the pathway of apoptosis as a result. So what happens in growing cell? It can be normal proliferative cells or tumor cells. Glucose gain entry cell, phosphoinositol 3 kinase regrowth factor या oncogene है ये. This is the oncogene which activates phosphoinositol 3 kinase AKT pathway, which upregulates glucose transporter
more glucose starts to gain entry into the cell, and we have increased glycolytic intermediates as a result. As a result, what is formed? Lactate बनता है इसमें. सिर्फ 5% जो इसके ग्लूकोजाइड गोज इनटू माइटोकॉन्ड्रियल साइकिल, और उसके लिए ग्लूटामीन एक अमाइनो एसिड है, वो भी इंक्रीज, उसकी भी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है इस वाले. As a result, what are the net yields? Lactate, then the products called lipogenesis, nucleotide amino acid synthesis, and protein synthesis. As a result, growth takes place. Okay, what is the role of this? This is receptor tyrosine kinase. This is also an oncogene. क्योंकि ट्यूमर्स में सारी ऑन्कोजीन्स जो हैं they are already present. Oncogenes यानी कि mutated proto-oncogenes. So one of the oncogenes was this receptor tyrosine kinase, phosphoinositol 3 kinase, AKT pathway, and the other receptor tyrosine kinase which gets activated is MEK oncogene. ये MEK oncogene क्या करती है? ग्लूटामीन की एंट्री को इंक्रीज कर देती है इनटू द सेल. अब हम ये तीनों पाथवेज जो हैं, ये तीनों जो इसके कॉजेज हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज phosphoinositol 3 kinase AKT signaling. It upregulates the activity of glucose transporters and multiple glycolytic enzymes, thus increasing glycolysis. Promotes shunting of mitochondrial intermediates to pathways leading to lipid biosynthesis and stimulates factors that are required for protein synthesis. ये तीनों functions जो हैं ये इस diagram के अंदर दिखाए हुए हैं इन्होंने. प्रोटीन सिंथेसिस को अपरेगुलेट कर रही है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को, और शंटिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अपरेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. नेक्स्ट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी. Rapidly dividing cells, both normal and malignant, express the M2 isoform of pyruvate kinase. Pyruvate kinase कौन सा enzyme है which catalyzes the last step in the glycolytic pathway, the conversion of phosphoenol pyruvate to pyruvate. अब receptor tyrosine kinase करता क्या है कि वो इस M2 isoform को मॉडिफाई कर देता है. इस तरह मॉडिफाई करता है कि उसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत कम रह जाती है. ठीक है, M2 isoform of pyruvate kinase की एक्टिविटी बहुत कम रह जाएगी. तो ये क्या होगा कि फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. अब फॉस्फोइनोल पायरोवेट जब रह गया पीछे और ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा इनटू पायरोवेट, इसका क्या फायदा है? इट इज साइफन्ड ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है. अगर आप लोगों को याद हो वो सारा पाथवे जिसमें ये होती थी डीएनए आरएनए से. ये था रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी. अच्छा, नॉर्मली सेल्स में क्या होता है? इसमें तो M2 आइसोफॉर्म है ना. M2 आइसोफॉर्म इज प्रेजेंट इन malignant or neoplastic cells. M1 आइसोफॉर्म इज प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स. ठीक है, और वो M1 जो आइसोफॉर्म है उसके ऊपर इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का कोई इफेक्ट नहीं होता. रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है ऑन्कोजीन है, जो कि वो M1 आइसोफॉर्म ऑफ पायरोवेट काइनेज को कुछ भी नहीं कर सकता. इसलिए नॉर्मल सेल्स के अंदर अगर ये ऑन्कोजीन हो भी जाती है एक्टिवेट, तो वो उसको फॉस्फोराइलेट ही नहीं कर सकेगी, तो वो नॉर्मली रहेगी एक्टिविटी सारी. थर्ड इज MEK oncogene. As mentioned, pro-growth pathways upregulate expression of the transcription factor MEK, which drives changes in gene expression that support anabolic metabolism and cell growth. ठीक है जी, ये जो है ये glutaminase और glutamine among the most important metabolic factors that are upregulated by MEK are multiple glycolytic enzymes and glutaminase, which is required for mitochondrial utilization of glutamine. ये था MEK. ओके, अभी तक आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं वॉरबर्ग इफेक्ट के. वॉरबर्ग इफेक्ट होता क्या है? इट इज द मेटाबॉलिक पाथवे दैट इज टेकन अप बाय द rapidly proliferating cells in our body. ठीक है, ये होता क्या है? How is it different from the normal pathway? इस pathway में क्या होता है कि there is presence of oxygen, but the cells opt to draw their energy through aerobic glycolysis, which yields only 4 ATP molecules. So 85% of the glucose goes into the process of aerobic glycolysis,
5% of the glucose goes into the mitochondria for Krebs cycle and oxidative phosphorylation, and remaining 10% goes into the production of um, phosphoenol pyruvate and the DNA and RNA raw materials. Okay, ये होता है वॉलबर्ग इफेक्ट। और इसके अंदर ये इतना एनर्जी एफिशिएंट मेथड नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? वी गेट all the intermediates for structural and enzymatic functions of the rapidly proliferating cells. ठीक है, होता कैसे है ये? इसके अंदर 3 types of genetic mutations are involved. First is receptor tyrosine kinase phosphoinositol 3 kinase AKT pathway that is involved, और उसके फिर आगे से 4 functions हैं. One is कि वो टाइम हो गया है, नहीं 1:30 तक टाइम लिखा हुआ है मेरे पास टाइम टेबल में, ठीक है, इसलिए अभी टाइम नहीं हुआ है, इसलिए इसको सुन लो और से टाइम की पड़ जाती है आप लोगों को। ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने लगी हूँ। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ वॉलबर्ग इफेक्ट। Clinically, the glucose hunger of tumors is used to visualize tumors via positron emission tomography scanning. PET scanning होती है कैंसर के पेशेंट्स के अंदर to see where the tumor is actively growing. Okay? In which patients are injected with 18F fluorodeoxyglucose, a non-metabolizable derivative of glucose that is preferentially taken up into tumor cells as well as normal actively dividing tissues such as the bone marrow. Most tissues are PET positive. Most tumors are PET positive and rapidly growing ones are markedly so. ठीक है, होता क्या है? एक पेशेंट कर देते हैं 18F फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, और ये फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज है, ये मेटाबोलाइज नहीं होती है, सिर्फ उन सेल्स के अंदर चली जाती है नॉर्मल ग्लूकोज की तरह ही। ठीक है, अब जिन सेल्स के अंदर जाएगी, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं इन दिस पेट स्कैनिंग टेक्निक। ये मशीन होती है इसकी, बिल्कुल MRI और CT स्कैन की तरह ही इसमें। अब ये उसका इमेज बनता है इस तरह से। ठीक है, ये जो आप लोगों को ज़्यादा डार्क एरियाज नजर आ रही हैं, दीज आर एक्चुअली द एरियाज वेयर हाईली proliferative tissue is present। अब एक ब्रेस्ट कैंसर की ही है, इसके अंदर आप लोग देखें कि ये ब्रेस्ट कैंसर वाली जगह पे बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव है। उसके बाद ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, सर्वाइकल ये जो सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स हैं, एंड देन ये जो है इसका लिवर है, लिवर के अंदर भी इसके मेट्स आए हुए हैं सारे, और उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सारा यहाँ पे, और इधर भी सारे मेट्स पहुंचे हुए हैं, और ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो it has become very easy with the advent of this PET scanning to identify the areas of metastasis in cancer patients. Okay, so people are busy in inventing and discovering all these things which we should be doing, which we should have been doing. 1:30 पे lecture end होगा। Yes. Okay, now we proceed on to our next hallmark, which is evasion of programmed cell death or apoptosis. So cancer cells don't undergo the process of apoptosis. इनके अंदर से apoptosis वाला system ही पूरा delete हो जाता है cancer cells के अंदर. That is why even though they are having so much of mutations and they don't go into the process of apoptosis. क्योंकि उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है जिसकी वजह से सेल डेथ नहीं होगी। ठीक है जी, ये तो आप लोगों को पहले ही पता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ apoptosis. A cell with genomic injury can be induced to die, eliminating the chance that such a cell might go on to give rise to a neoplasm. A variety of signals, including DNA damage, deregulation of some of the most potent oncoproteins such as MYC, and loss of adhesion to the basement membrane, termed anoikis, can trigger apoptosis. Thus, apoptosis is a barrier that must be surmounted for cancer to develop and progress. Obviously, इसके बगैर cancer नहीं होता,
क्योंकि ज़रा सी भी उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी, नॉर्मल अगर फंक्शनिंग है एपोप्टोटिक पाथवे की, तो क्या होगा, उसी वक्त वो उसको डिटेक्ट करेगा और उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। जो आप लोगों ने सारी प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स पढ़ी हैं, BCL2 ये फलानी, वो सारी उसको डैमेज कर देंगी। Accumulation of neoplastic cells may result not only from activation of growth promoting oncogenes or inactivation of growth suppressing tumor suppressor genes, but also from mutations in the gene that regulate apoptosis. Just revising the pathway of apoptosis, there were two major pathways, intrinsic and extrinsic. Of these two pathways, it is the intrinsic apoptotic pathway, sometimes referred to as the mitochondrial pathway, that is most frequently disabled in cancer. ये MCQ है, इसको आप लोग नोट कर लें. Okay, now the intrinsic pathway and the extrinsic pathway. Intrinsic pathway is triggered because of any radiations or chemicals or any other stress, cell injury. What happens as a result, the DNA is damaged. That is why it is called the intrinsic pathway, because the initiating event is internal, in DNA damage. DNA damage, what happens? P53, it is one of the tumor suppressor genes also. P53 becomes activated and it activates BAX and BAC proteins. BAX and BAC proteins क्या होती हैं? These are the pro-apoptotic proteins. These pro-apoptotic proteins, they start to form holes in the mitochondrial outer membrane. As a result, cytochrome C leaks out of the mitochondria into the cell and activates caspase 9. Caspase 9 then in turn activates caspase 3, which is the caspase, which initiates the process of apoptosis after binding with the dead substrate. Okay, ये cytochrome C जो है, if it binds with anti-apoptotic factor 1, तो इसकी सारी जो है potency, it is lost at once. Okay. Now what happens in the extrinsic pathway? Fas ligand is a ligand for Fas CD95 receptor that is present on the surface of cells. When Fas ligand binds with Fas, it leads to the trimerization of the internal portion of this Fas or this receptor, which is known as FADD. And it is trimerized. What happens? This procaspase is attached on the inner part of this fat. It is activated. In turn, it activates caspase 8. Caspase 8 in turn activates pro-apoptotic proteins, and that can induce the intrinsic pathway also. On the hand, caspase 8 activates institutional caspase, which promotes the process of apoptosis further. आप लोग सारा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ओके, अब इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जाके एपोप्टोसिस जो पाथवे है इससे ट्यूमर सेल्स करते क्या है आखिर. पहले ये क्या करते हैं? लॉस ऑफ P53, which is the tumor suppressor gene. Tumor suppressor gene leads to reduced function of apoptotic factors. This is very understandable कि वो जो cancer cells हैं, they will first of all try to attack P53, and P53 मैंने आपको last lecture में भी बताया था, it is the gene that is mutated in more than 50% of tumors or cancer. Second, egress of cytochrome C from mitochondria as a result of upregulation of anti-apoptotic factors such as BCL2, BCL-XL and MCL. तो ये anti-apoptotic factors ये इंक्रीज हो जाते हैं इसके अंदर. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा. एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स को डाइल्यूट कर देते हैं कि वो बाइंड कर जाते हैं. एज अ रिजल्ट द एपोप्टोटिक फैक्टर्स आर अनएबल टू make holes in the membrane of the mitochondria. Third is loss of apoptotic peptidase activating factor 1. ये जो APAF है जिसने बाइंड करना था विद साइटोक्रोम C, ये जो है ये lost, it is lost. Fourth is upregulation of inhibitors of
जब inhibitors of upregulate हो जाएंगे तो obviously they will start inhibiting the process of apoptosis. No audio. मुझे पता ही नहीं है कि कोई ऑडियो नहीं. ओके, आप लोग यहीं से ही आपका रहा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ट्यूमर सेल्स को चाहिए क्या, ट्यूमर सेल्स वांट नो एपोप्टोसिस. So the things are and they are be treated or protected by the tumor cells. So सबसे पहले they will get rid of this P3. Second thing, they will get rid of these anti-apoptotic factors BCL2, BCL-XL and MCL1. ये सारे जो एंटी एपोप्टोटिक हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे. उससे क्या होगा, सारे एंटी नहीं है, प्रो एपोप्टोटिक ज्यादा होते हैं ना. Sorry, there is upregulation of anti-apoptotic factors. Upregulation means they will start function more efficiently, anti-apoptotic. Next is loss of apoptotic. Okay. So ये डायग्राम के अंदर दी है, इसके अंदर ये सारे इमेज इनके ऊपर अटैक करता है ट्यूमर सेल टू from the apoptosis. P53 response, उसके बाद upgradation of anti-apoptotic and then की डाउन रेगुलेशन. इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस जो है इसकी डाउन रेगुलेशन. बाद जो है CD95 इसकी डाउन रेगुलेशन और डेथ सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोकैस्केट इसकी भी डाउन रेगुलेशन. एज अ रिजल्ट there will be no apoptosis in the cell, the tumor cell. इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, BCL2 mutation in, it is one of the best established is the role of BCL2. BCL2 क्या है, BCL2 is a pro-apoptotic. BCL2 is pro-apoptotic और anti-apoptotic. Anti-apoptotic या BCL2. अच्छा जी, BCL2 की इसके अंदर अप रेगुलेशन हो जाती है in certain cells. In protecting malignant lymphoid cells from apoptosis, approximately 85% of B-cell lymphomas of the follicular type carry a characteristic 14-18 translocation. It causes overexpression of BCL2. This in turn protects lymphocytes from apoptosis and contributes to the survival of transformed B cells. Okay. अब ये इस ट्रांसलोकेशन को आप कैसे रीड करते हैं? बाय द वे ये जो है इसकी अपीयरेंस है हिस्टोलॉजी की, फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा. ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉलिकल्स की तरह ही इसकी प्रोलिफरेशन हुई हुई है सारे के सारे बी सेल्स. लिम्फोमा जो होता है ये प्रेजेंट कैसे करता है, लिम्फोमा का मतलब होता है लिम्फ नोड्स के अंदर वो या फिर लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे हाइपरस्प्लेनिज्म या फिर लिम्फ नोड्स जो है दे आर इनलार्ज, या लिवर जो है उसके अंदर भी लिम्फॉइड एक्टिविटी होती है दैट कैन बी इनलार्ज, या वहाँ पे कोई उसके अंदर आ सकते हैं. अच्छा जी, अब ये है क्रोमोसोम नंबर 14 और ये है क्रोमोसोम नंबर 18, ये छोटा वाला. ठीक है, पी का मतलब है उसका शॉर्ट आर्म
and Q means the long arm of the chromosome. अब क्रोमोसोम नंबर 14 के लॉन्ग आर्म के ऊपर 32 जो लोकस है वहां पे देयर इज प्रेजेंट एन एंटीबॉडी एच चेन्स. ठीक है, एंटीबॉडी एच जो है, आप लोगों ने एंटीबॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स के नाम पढ़ लिए हुए हैं. तो हैवी चेन जो है एंटीबॉडी की, इट इज प्रेजेंट एट द 14 क्रोमोसोम लोकस 32. और BCL protein anti-apoptotic protein. It is present on the long arm of chromosome number 28 at the locus 21. Okay, this BCL2 is removed from this chromosome number 18 and it is translocated to this 4. जो है वो क्रोमोसोम नंबर 14 के लोकस नंबर 32 पे जहाँ पे एच चेन है वहाँ आ जाती है और उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है इसकी CL2 की. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द बी सेल्स ऑफ बी सेल लिम्फोमा फ्रॉम एपोप्टोसिस. ये इसकी एक एग्जांपल थी. ये सारे MCQ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अलग से लिख दिए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थे. First is overexpression of K2 must cooperate with other alterations, for example, constitutive expression of MYC to augment cancer development. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पेशेंट किसी भी सेल के अंदर सिर्फ BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन हो गई है और मिक की या किसी भी और ऑन्कोजीन की या फिर किसी ट्यूमर सप्रेसर जीन की सप्रेशन नहीं हुई, तो क्या कैंसर होगा? नहीं होगा कैंसर. अकेली BCL2 ओवर एक्सप्रेशन जो है दैट कैन नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर. ठीक है. Most hematopoietic and solid tumors overexpress at least one member of the BCL2 family of anti-apoptotic proteins, suggesting that evasion of apoptosis is generally important in cancer development and progression. ठीक है, अब having said कि अकेली BCL2 कुछ नहीं कर सकती, लेकिन still most hematopoietic and solid tumors they overexpress at least one member of the BCL2 family of anti-apoptotic proteins. लेकिन this happens along with the overexpression of oncoproteins and loss of function of tumor suppressor genes. ठीक है, होती है तकरीबन सब में ही है क्योंकि एपोप्टोसिस के की इवेजन के बगैर कैंसर जो है वो नहीं डेवलप हो सकता. This is the most important MCQ point. Chemotherapy and radiation therapy kill cancer cells mainly by inducing apoptosis via the intrinsic pathway. ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेना, ये जरूर आता है एग्जाम के अंदर. Overexpression of BCL2 family members is believed to have an important role in the resistance of tumors to therapy. For example, MCL1. MCL1 जो है वो कईयों के अंदर ओवर एक्सप्रेस हुई भी होती है और उसकी वजह से कीमोथेरेपी से रेजिस्टेंस भी हो जाती है पेशेंट को. जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स से भी रेजिस्टेंस हो जाती है और उसकी वन ऑफ द कल्प्रिट्स इज MCL1 ओवर एक्सप्रेशन. ओके, दिस वाज अवर टुडेज लेक्चर. अब आप लोग बताएं कि कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के. आप लोगों ने सुना भी है ये लेक्चर के नहीं सुना, और पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें से अगर किसी को कोई समझना है, कुछ समझ नहीं आया तो भी बताएं. कैन वी प्लीज गेट स्लाइड्स? यस ऑफ कोर्स यू कैन गेट स्लाइड्स. फेसबुक पर प्रेजेंटेशन ये है लास्ट वाली स्लाइड. Any other questions, please? Any other feedback? फॉलो करें या फॉलो नहीं करें लॉकडाउन? करें. गुड.
बुक्स नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपीज भी नहीं है आप लोगों के पास। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस कंफर्म कर दें। नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का जो ग्राम नेगेटिव का टेस्ट आ रहा है, ओके, मैं डॉक्टर माजिद से कहूँगी कि वो कंप्लीट सिलेबस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लें। मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर का नहीं पता कि कहाँ से मिलेंगे, मेरा ख्याल है आपको मनीबा से पूछना चाहिए, शी कैन गाइड यू। सॉफ्ट कॉपीज से पढ़ना मुश्किल है, ये तो बहाना है। पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि आगे जो ज़माना आ रहा है उसमें हार्ड कॉपीज आर गोइंग टू गेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ठीक है, पेपर लेस होने जा रहे हैं आप लोग भी। इवन जब आप लोग वापस भी आएंगे तो आई थिंक आप लोग ज़्यादातर पेपरलेस होने की तरफ जा रहा है आप लोगों का कैंपस। तो अब आप लोगों को आदत डालनी चाहिए सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने की। हमें भी नहीं थी पहले, लेकिन अब जब से मैंने लेक्चर्स बनाने शुरू किए हैं तो मैं सॉफ्ट में से ही पढ़ती हूँ, बल्कि मुश्किल लगता है कि अलग से हार्ड कॉपी खोली हो और यहाँ पे लेक्चर बना रही हूँ। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी आदत की बात है, आप लोग आदत डाल लें अगर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चंस? नो मैम। चलें, दैट्स गुड। वैसे ये नियोप्लेजिया जो है इसके मेरे नोट्स भी हैं, वो आप लोग अपने सीनियर से ले सकते हैं, उनके पास शायद सॉफ्ट में पढ़े हों तो वो आप लोगों को दे देंगी। एग्जाम में आप लोगों को इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, वो वहां से अच्छी तरह कवर हो जाएगा। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ रहने वाला नॉलेज। ठीक है, हॉस्टल पढ़े हैं, सब कुछ हॉस्टल क्यों छोड़ के गए हैं आप लोग, लेकर जाए। चले खैर, किसी को पता नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। मेरे पास नोट्स खुद नहीं है क्योंकि मैं दे चुकी हूँ। आई डोंट हैव माई नोट्स नाउ, सॉरी। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नहीं बल्कि सिर्फ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ एवरीवन अराउंड यू एंड योर सेल्फ ऑल्सो। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। आप लोगों को ये बोनस टाइम मिला है अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने के लिए, स्पेशली जो लोग हॉस्टलाइट्स थे, क्योंकि इस तरह से मेडिकल लाइफ में कभी भी नहीं इतनी छुट्टियां आती। तो ट्राई टू अवेल दिस एज मच एज पॉसिबल। बॉयज भी इवन, प्लीज अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनके साथ बैठ के बातें करें। और क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, आप लोग अपनी स्टडीज कंप्लीट करके फिर आप लोगों ने बिजी हो जाना है जॉब्स में, और फिर कोई टाइम नहीं होता पेरेंट्स के साथ बैठने का। थक गए हैं तो फिर उनकी टांगें दुखाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।